आज ਦੇ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੀਕ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 88,000 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹਨ। 88,000 ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 88,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,000 ਸੈਂਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹਨ ਐਂਡ 7,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਹਲੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 7,000 ਟੋਟਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਨ। 254 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ 2,000 ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਐਂਡ 1,000 ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। 1,000 ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਐਂਡ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਲੜ ਕੇ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੀਏ ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 2,000 ਬੈਡਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,200 ਲੈਵਲ 1 ਦੇ, 750 ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਐਂਡ 15 ਬੈਡ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 1,000 ਬੈਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਐਂਡ 50 ਬੈਡ ਲੈਵਲ 1 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ, 714 ਬੈਡ ਲੈਵਲ 2 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਐਂਡ 224 ਬੈਡ ਲੈਵਲ 3 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਬੈਡ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਬੈਡ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਬੈਡਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਨਾ ਕਿ ਬੈਡਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਵਗੈਰਾ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਮਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ। ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਕੇਵਲ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ट्रैवल है वो जारी रहेगी, इंडस्ट्रीज जारी रहणगियां, लेकिन जी नॉन इसेंशियल गुड्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं या कोई और नॉन इसेंशियल आइटम्स हैं वो सारे सैटरडे एंड संडे लुधियाने दे विच बंद रहणगे। तुहाडे काफ़ी सारिਆਂ ਦੇ कुछ क्वेश्चनस आए सीगे, उन्हां क्वेश्चनस के बारे में तुहानूं दसना चाहांगा। मनीष गर्ग इन्होंने पूछा है कि प्लीज़ प्रोवाइड द कंप्लीट प्रोसीजर कि होम आइसोलेशन दे विच रहना होवे तां उहदा की प्रोसीजर है। देखो जे जदों कोई बंदा पॉजिटिव आ जाता है एंड उहदे लई
सब तो वड्डी एक समस्या होंदी है कि हुण अगे की करना है। अगे सब तो पहले तो ये करना है कि तुसी घबराना नहीं है। जे तुसी पॉजिटिव आ भी गए कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं है, उसका हर एक चीज़ का इलाज है। जिहड़े पॉजिटिव पेशेंट कोरोना वाले होंदे हैं 90% तो आप ही ठीक हो जाते हैं, अपने होम आइसोलेशन के ही ठीक हो जाते हैं। 10% मरीजों को प्रॉब्लम आती है, उन्होंने भी हॉस्पिटल जाके वो मरीज भी लगभग सारे ही ठीक हो जाते हैं। उन्होंने 1% या 2% की जरा थोड़ा ज़्यादा सिस्टम खराब होता है। तो जो तुहानू कोई इस तरीके की तुहाडा टेस्ट होया एंड तुहानू पता लग्या जी कि तुसी पॉजिटिव आ गए हो, तुहानू सब तो पहले तो ये करना है, घबराने की लोड़ नहीं। तुसी अपने आप नू एक कमरे के अलग अपना अपना कमरा सैपरेट कर लेना है एंड कमरा सैपरेट करन तो बाद तुसी उस अपने जिहड़े बाकी परिवार के मैंबर हैं उन्हां नाल जो तो देखो पहला कॉन्टैक्ट हो गया तो हो गया, अगे तुसी कॉन्टैक्ट नहीं रखना। अपना खाना पीना सैपरेट कर लेना है एंड नहाना पीना सारा कुछ उस कमरे के अंदर ही करना है। एंड तुसी ਜਿਹੜੇ डॉक्टर्स ने जिथे तुहाडा ट्रीटमेंट होया है उन्हां दी टीम तुहाडे आवेगी घर एंड वो तुहानू आइसोलेशन के बारे दस के जाएगी। तुहानू पहला ये प्रोसीजर असी रखिया सी कि तुहानू पॉजिटिव बंदियां नू असी पहला एक सिविल हॉस्पिटल लैके आंदे सी एंड उत्थों फिर रैफर हुंदे सी, उस दे विच असी थोड़ा जिहा सुधार कर रहे हैं। तुहानू अपने घर दे विच ही रहना है, तुहाडी साडी जिहड़ी मैडिकल टीम आवेगी एंड वो तुहानू प्रॉपरली गाइड करके होम आइसोलेशन का प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ दस के जाएगी। एक चीज़ होंदी है ऑक्सीमीटर, जिसनों कि आप उंगल दे विच लगा के ऑक्सीजन वगैरह चैक कर सकते हैं। वो तुसी जे पॉजिटिव आते हो तुसी वो बाज़ारों खरीद लवो। पहले ये डिवाइस आती सी 1200-1500 रुपए की, हुण तो ये बहुत सस्ती हो गई है, 500 रुपए के अंदर अंदर ही आ जाती है। अभी तो 400 रुपए तक की भी मंगाइया है, 500 रुपए के अंदर दी तकरीबन आ जाती है। वो 400-500 रुपए की ऑक्सीमीटर जिसनों पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं वो तुसी मंगा के रख लेना है। उत्तों तुसी उंगल दे विच पा के अपनी ऑक्सीजन लेवल चैक करते रहना है। 95% तो ऊपर होनी चाहिए है। गौरव बग्गा खुराना इन्होंने पूछा हैगा, आई थिंक साइड बाई साइड प्रिकॉशनरी मेजर एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू कंट्रोल द पैनिक अमंग द सिटीजनस। देखो ये तो मैं तुहानू कह ही रहा कि पैनिक होने की गल नहीं है, ये तो आपां नू सावधानियां रखनी है, ये बारे जागरूक होना है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल जागरूक ही ना होइए, लापरवाह हो जाइए एंड नाल दे बंदे नू कोरोना हो रहा है तो फिर भी आप उहनू टच कर रहे हैं, उहदे नाल जफी मार पा रहे हैं, वो ना होवे। सतवीर सिंह इन्होंने पूछा है कि पीपल आर वेरी केयरलैस इन आवर सिटी, दे आर नॉट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंस। देखो ये मैं तुहानू पहला ही क्या है, कोरोना के नाल जिहड़े आपां लड़ना है तो 7 चीज़ां आपां नू चाहीदियां। ये 7 चीज़ां मैं तुहानू काफ़ी बारी पहला भी दस चुके हैं। 7 चीज़ां किहड़ी हैं तुहानू आप भी पता है। पहली चीज़ तो है मास्क। मास्क तो बिना तो अपन निकलना ही नहीं, मास्क नू तो बिल्कुल गूंद नाल चिपका लो। कई बंदे की होंदे हैं मास्क नू नक दिस रही होंदी है उन्हों दी, या चिन के उपर लगा लेंदे हैं, या इदा लुका के रखते हैं कि जो पुलिस वाला आ गया तो आप मास्क लगा लेना है। वो नहीं करना, मास्क आप प्रॉपरली लगाना है। घर के अंदर तुसी मास्क लगाते हो या नहीं लगाते तो चलो तुसी अपना सारिਆਂ ने इकट्ठे ही रहना होंदा है, वो तो तुहाडी अपनी पर्सनल चॉइस है। जिद्दां ही घरों तुसी बाहर निकले मास्क लगाना है। एंड कई बार होंदा कि आप मास्क लगा के किसी नूं मिलण लई गए, जदों गल्लां बातां हुईयां, चाह तो आंदी है, चाह बिस्किट आए तो आप 2 मिनट लिए मास्क नूं उतारिया तो चाह पी ली, वो नहीं आप करना। जे आप 2 मिनट की 1 मिनट लिए भी मास्क नूं उतारते हैं, चाय चू पींदे हैं, तो फिर सारा मास्क का सिस्टम, मास्क लगाना ना लगाना बराबर है। तो इस करके पहली चीज़ मास्क। दूजी, जदों आप बाहर जाते हैं 2 मीटर की डिस्टेंस आप रखनी है किसी दूजे बंदे तो, अनजान बंदे तो। घर के बंदे तो चलो नेड़े होंदे आ। 2 मीटर की डिस्टेंस जे तुसी रखोगे, जिहड़े मास्क लगा के रखोगे, तुहानू चांसेस ऑफ इन्फैक्शन जिहड़े आ वो 1% भी नहीं रहने। हुंदा की आप सपोज बाजार कोई सामान लैण लई गए, उत्थे बाजार दे विच जिथे आप पैसे दिन्ने आ उस दुकान ते काउंटर ते भीड़ है, आप कोशिश करते हैं एक दूजे के उपर चढ़ के पैसे पहला दे दीए, वो 2 मीटर की डिस्टेंस खत्म हो जाती है तो वो अपना प्रॉब्लम आती है। मास्क, सोशल डिस्टेंस। तीजा अपना हैगा हाथ अपने वॉश करते रहना है, 20 सेकंड लिए घट्टो घट्ट हैंड वॉश करने हैं, क्योंकि ये जोड़ा कोरोना का वायरस है, यदा साबुन जोड़ा अपना साबुन है वो सब तो जे आप साबुन नाल या सैनिटाइज़र नाल, सैनिटाइज़र जे अपने कोल साबुन नहीं है तो आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं बार बार, तो ये नाल जे कोई इन्फैक्शन होंदी भी है वो किल हो जाती है। तो चौथी गल,
क्राउडिड प्लेस ਤੇ नहीं जाना ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ भीड़ भड़का ਹੁੰਦਾ है, खासकर सब्जी मंडियाँ ਹੁੰਦੀਆਂ या कोई शादी ब्याह है या कोई इस तरीके का कोई सोशल कोई है फंक्शन, कोई रिलीजीयस प्लेसिस हैं जिथे की भीड़ हो सकती है, कोई भी चीज़ जिथे भीड़ हो सकती है जिदे बिना अपना काम सरदा है उत्थे बिल्कुल नहीं जाना, किसी भी कंडीशन च नहीं जाना। खासकर मन के चलो हुण अपना पीक टाइम चल रहा है कोरोना का, 1.5 महीने का अपना मैं समझदा कि ज़्यादा प्रिकॉशन आपां नूं रखण वाली है। तकरीबन 18 अगस्त हो गई, 1 महीना तुसी सैप्टंबर के मिड तक का प्रिकॉशनस प्रॉपर रखो तो आप इस बीमारी के उपर विजय प्राप्त करनी है। तो पंजवीं गल रेस्पायरेटरी हाइजीन, वो तो तुसी चलो मास्क लग्या हुंदा है, रेस्पायरेटरी हाइजीन हुंदा जे तुहानूं छीक वगैरह आंदी है तो तुसी उसनूं अपने साइडां ते रखना है, लेकिन मास्क दे विच तां वो बचाव हो जाता है। तो 6वीं गल जिहड़ी है, जे तुहानूं सिम्पटम्स आते हैं तो इमीडिएटली मैडिकल अटेंशन लैनी है, मैडिकल ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर कोल जाना है। ये ना हो कि तुहानूं फ्लू आ जाए, बुखार आ जाए, सिर दर्द करे, तुहाडा खंघ आ जाए, फिर भी तुसी उसनूं इग्नोर करे चलो, घर विच बैठे रहो कि सोचो कि शायद आप ही ठीक हो जाऊगा, हर साल ही आंदा सी ये, वो नहीं करना। ये सीजन इस बार दा वखरा हैगा, इस बार जिन्ने भी इस तरीके के मरीज आ रहे हैं, बाकी बीमारियां सारियां खत्म हो रही हैं, ये कोरोना वाली बीमारी आ रही है। एंड इस बीमारी तो डरन की लोड़ नहीं, जे तुसी डॉक्टर तो जाओगे, डॉक्टर की सुपरविजन के विच रहोगे, घर दे विच ही रहना है, तो ये तुहानूं डॉक्टर्स कुछ प्रिकॉशनस दसणगे कि करना है, तो कुछ एक विटामिन की गोलियां वगैरह दे देंगे, तो वो लेकिन ये बीमारी कंट्रोल हो जाती है। तो यानी कि जदों भी अर्ली सिम्पटम्स आते हैं वो आपां लुकाने नहीं, वो दसने हैं। तो 7वीं गल और जो सब तो इंपॉर्टेंट है कि अपनी इम्यूनिटी नूं बूस्ट करके रखना है, मोरल डाउन नहीं करना। इम्यूनिटी नूं बूस्ट करन लई नींद पूरी लैनी है 8 घंटे की, पानी पूनी पींदे रहना है। एंड जिहड़े अपने मैं तो हमेशा कहना तुहानूं तुलसी, गिलोए, काढ़े, ये जिहड़ी पुरानी चीज़ां हुंदी सीगियां वो आपां लैके रखनी है। फ्रूट्स वैजीटेबल्स प्रॉपरली खानी है, खाने का ध्यान रखना है। काजू बादाम हैल्दी तरीके नाल तुसी खा सकते हो। एंड इस तरीके का सारा तुसी सिस्टम अपना इम्यूनिटी नूं बूस्ट करके रखना है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चनस अपने कोल हुण आ रहे हैं, तो असी इन्होंने एक एक करके लवांगे। गुरजीत सिंह आज़ाद इन्होंने क्या है कि आवर कंप्यूटर सेंटर इज़ क्लोज्ड, कदों ओपन होगा? गुरजीत जी थोड़ा दिन और वेट करो, कंप्यूटर सेंटर्स दी सरकार लेवल ते विचार चल रहा है, जिस तरीके नाल भी इंस्ट्रक्शनस आउणगियां असीं तुहानूं दस देवांगे। कुलदीप सिंह राजपाल इन्होंने क्या है कि प्लीज़ स्टॉप बैगिंग स्पेशली नियर पैविलियन मॉल। बिल्कुल देखो, ये बैगिंग के खिलाफ असी सख्त एक्शन पहला भी लिया हैगा, जे इस तरीके की तुहाडी कोई ऑब्जरवेशन है असी बिल्कुल एक्शन लवांगे। मिलन सूद इन्होंने क्या है कि वेंडर्स इन सब्जी मंडी बहादुर के रोड कैन बी ओपन ऑन सैटरडे एंड संडे। देखो सब्जी जिहड़ी है वो इसेंशियल आइटम्स दे विच है, सैटरडे संडे दे विच इसेंशियल आइटम्स वाली शॉप्स खुल सकदियां हैं। उहदे विच सब्जी हो गई, दुध हो गया, ब्रैड वगैरह हो गई, किराने का सामान हो गया, तो मैडिकल शॉप्स हो गई, हॉस्पिटल्स तो चलो है ही हैं, तो ये चीज़ां खुल सकती हैं। हिमांशु भाटिया इन्होंने क्या किया, लेट अस नो अबाउट CP इंक्वायरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वैदर ये की लिखा है कुछ CP ऑफिस दे विच इंक्वायरी कि CP ऑफिस दे विच जे कोई कंप्लेंट की इंक्वायरी करनी होवे उहदा की प्रोसीजर है। देखो CP ऑफिस दे विच भी काफ़ी सारे मुलाजिम पॉजिटिव आए हुए हैं, तो समय समय पर सानू इहदी CP ऑफिस की सैनिटाइजेशन भी करानी पैंदी है। एंड असी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कुछ दिन लिए पब्लिक डीलिंग बंद भी करते रहते हैं। फिलहाल पब्लिक डीलिंग खुली हुई है, लेकिन इहदे लई ये है कि असी अपना ईमेल राही अपना सिस्टम पब्लिक दे नाल जोड़ के रखा हुआ है। जे तुहानू कोई CP ऑफिस दे नाल कोई कंप्लेंट है तो तुसी ये साडे ईमेल एड्रैस है cp.ldh.police@punjab.gov.in। इस ईमेल एड्रैस से तुसी cp.ldh.police@punjab.gov.in इस ईमेल एड्रैस से तुसी कोई भी अपनी जिहड़ी कंप्लेंट है वो तुसी भेज सकते हो। एंड साडा तुहानू विश्वास है कि विदिन 24 आवर्स असी उस कंप्लेंट नू रीड करके उसनू कंसर्न ऑफिसर्स नू मार्क कर देंगे हैं। एंड तुहानू इंटीमेशन मिलती है कि ये तुहाडी कंप्लेंट इस फला अफसर नू मार्क हुई है, उन्हों का मोबाइल नंबर ये है, तुहाडी कंप्लेंट का नंबर ये है, ताकि तुसी उसनू फॉलो कर सको। ये तुहाडा क्वेश्चन हो गया हिमांशु।
कामरा कैन वी ट्रैवल विद इन स्टेट ऑन सैटरडे एंड संडे। देखो स्टेट्स ਦੇ ਅੰਦਰ ट्रैवल ਤੇ सैटरडे एंड संडे हले कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन जो मेन मोटिव ये है कि ਆਪਾਂ अननैसेसरी ट्रैवल ਨੂੰ खत्म करना है, भावें वीकडे होवे भावें वीकेंड होवे। सैटरडे संडे वैसे ਤੁਸੀਂ टैक्नीकली जा सकते हो, लेकिन ਆਪਾਂ सोशल फंक्शनल ਲਈ नहीं जाना। कोई ਤੁਹਾਡਾ बिजनेस है, कोई ਤੁਹਾਡਾ कुछ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ नहीं सरदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ जाना चाहते हो, ਤੁਸੀਂ जा सकते हो। विनय जैन, हाउ कैन वी गैट बैड अवेलेबिलिटी इन लुधियाना। देखो विनय जी, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। HBMS ਹਸਪੀਟਲ ਬੈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। HBMS ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬੈਡ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। DC ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਲੌਕਡਾਊਨ ਫॉर 15 ਡੇਜ਼। ਦੇਖੋ ਜਪਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਾਡੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੱਚ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 7 ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, अपना हैंड वॉश, इम्यूनिटी, क्राउडेड प्लेस ते नहीं जाना, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखनी है, अर्ली सिम्पटम्स से चेक करवाना, ये सारी चीज़ें यदि प्रिकॉशनस हैं। जे कोई बंदा कहे कि मैं ये प्रिकॉशनस मननिया नहीं, मैं मास्क नहीं लगाना, मैं हर एक नूं मिलना है, मैं अपना काम नॉर्मली करना है, फिर तो हुण दसो इहदा कसूर फिर गौरमेंट का है कि किहदा है। फिर लॉकडाउन की तो उन्होंने फिर लोड़ पै सकती है कि जे आप किसी गल नूं मन्नांगे ही नहीं, फिर ये लॉकडाउन का होंदा कि जे तुसी मनना ही नहीं तो फिर तुसी अपने बिल्कुल अंदर ही बैठो। लेकिन ये बिजनेस नूं भी आपां नाल दी नाल इकोनॉमी नूं भी लैके चलना हुंदा है, इस करके वॉलंटरी जिहड़ा लॉकडाउन है वो सब तो सफल तरीका हुंदा है। एंड जे बंदे नूं कोई इमरजेंसी है वो उसनूं ये विश्वास होना चाहिए कि मैं बाहर जा सकदा, मैनूं किसी परमिशन की लोड़ नहीं, वॉलंटरी लॉकडाउन तुसी कर सकते हो। गुरमिंदर सिंह इन्होंने पूछा है, होम आइसोलेशन इज एप्लीकेबल इन लुधियाना और नॉट। बिल्कुल होम आइसोलेशन नूं असी बढ़ावा देंगे हैं, क्योंकि होम आइसोलेशन दे विच जिहड़ा कोरोना पेशेंट है उहदे लई एक अपना माहौल, घर का माहौल एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। उहदे विच होम आइसोलेशन दे विच कुछ प्रिकॉशनस रखनियां हुंदियां, जिद्दां अपने कमरे के अंदर ही रहना हुंदा है, कमरे के अंदर अटैच लैट है। बाहरले ਜਿਹੜੇ अपने रिश्तेदार होंगे हैं, कोई वाइफ या मदर, उन्होंने घट तो घट कॉन्टैक्ट, मतलब बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं रखना होंदा। उन्होंने कमरे के बाहर तुहाडा खाना रख जाना, तुसी अंदर लैके खाना खा लेना, बर्तन तुसी अपने साफ करके अंदर ही रख लेने, अगली बारी उन्होंने खाना उन्होंने बर्तनों के विच ही पा देना। कपड़े कुपड़े तुसी अपने आप ही धोने होंदे अंदर ही कर के, उस हिसाब का सिस्टम तुसी बनाना होंदा कि ताकि तुहाडा इन्फेक्शन नाल दूजा तुहाडा रिश्तेदार है वो उसनूं इन्फेक्शन ना होवे। तो जे आप थोड़ा जिहा ध्यान रखांगे तो होम आइसोलेशन मतलब साडी तो कोशिश ये होंदी है कि एटलीस्ट आज की डेट 50% साडे मरीज़ 2000 चों 1000 जिहड़े हैं वो होम आइसोलेशन दे विच ही है। असीं तां इसनूं 80% तक 90% तक लैके जाना चाहते हैं कि वध तो वध बंदे अपने घरां दे विच ही रहन, क्योंकि जो उन्होंने नाल ही डॉक्टर नाल टेलीफोन ते कॉन्टैक्ट दे विच रहन, जे उन्होंने कोई प्रॉब्लम है टेलीफोन राहीं वो सॉल्व हो जाए। साहिल सीकरी इन्होंने पूछा है कि आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर कोविड टेस्ट। नहीं, आधार कार्ड कोई मैंडेटरी नहीं है, एक आईडी प्रूफ चाहिए होंगे। कई बार की होंगे ना, बंदे दी आप टाइप करने वेले स्पैलिंग कुछ गलत लिख देंगे हैं,
ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾइसेंस ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਸੰਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕੈਨ ਜਿਮ ਓਪਨ ਔਨ ਸੈਟਰਡੇ। ਦੇਖੋ ਸੈਟਰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾइंस ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕੇਵਲ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ, ਕਿਰਾਣਾ ਇਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਾ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੈਪ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਿਲਸ ਫॉर ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਲੈਵਲ 1 ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ 2 ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ 3 ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਵਲ 1 ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬੈਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਲੈਵਲ 1 ਬੈਡ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੈਵਲ 2 ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਈਪਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੈਵਲ 3 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ICU ਕੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਬੈਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਰਸਾਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 8000 ਹੈ ਜਾਂ 7000 ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਬੈਡ, ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਰੇਟਸ 10000 ਜਾਂ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਲੈਵਲ 3 ਦੇ 15000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟੂਸਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਰੇਟਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ हैं, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ हैं, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਮਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਓਪਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਫॉर ਸਟੱਡੀ। ਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਲਈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਨ ਵੀ ਓਪਨ ਆਫਿਸ एंड ऑफ आवर फैक्ट्री ऑन सैटरडे एंड संडे। देखो फैक्ट्रीज ਲਈ सैटरडे संडे वाला रूल नहीं है, फैक्ट्रियां 24 घंटे चल सकती हैं, सैटरडे होवे संडे होवे 7 दिन बिल्कुल चल सकती हैं फैक्ट्रीज ਲਈ, क्योंकि फैक्ट्रियां करके ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ एंड रोजी रोटी मिलती है, सामान बनता है, वो सारा साइकिल खराब हो जाऊगा। फैक्ट्री ਦਾ ਆਫਿਸ कोई भी ऑफिस ਤੁਸੀਂ सैटरडे संडे वो कर सकते हो, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ नहीं है। सजेशन है गवर्नमेंट का कि तुसी स्टे एट होम, जे तुहाडा सरदा है तुसी स्टे एट होम रहो, जे अदरवाइज फैक्ट्रीज दे इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। अतुल मल्होत्रा इन्होंने पूछा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट मैरिज फंक्शनस। मैरिज फंक्शनस का देखो गवर्नमेंट वालों हुण अपने बंदे तो की है ना कि बड़े शातिर होंदे हैं, गवर्नमेंट कोई रूल बना दे उन्हां दा हुंदा है कि आपां रूल नूं किस तरीके नाल तोड़ना है। मैरिज फंक्शन का ये रखा होया है कि 30 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ 30 ਆਦਮੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, 30 ਬੰਦੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੇਵਲ ਮੇਨ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। इस तरीके का वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हुण उस तरीके के माहौल दे विच जे पुलिस ज़्यादा डूंघाई नाल पुछगिछ करे उसनूं भी ठीक नहीं समझा जाता। इस करके ये देखो ये असीं तुहाडे अपने फायदे लिए कर रहे हैं। सगों पुलिस जदों चैक करन लई जांदी है उन्हां दी तां अपनी जान नूं खतरा हो जाता है कि, और मैं तुहानूं दसना चाहांगा लुधियाने दे विच हुण तक 260 पुलिस वालियां नूं कोरोना हो चुका है।
एंड आज अपनी 2000 केसेज एक्टिव है। 2000 एक्टिवां दे विचों 160 तो पुलिस के मुलाजिम ही है। मतलब आप कह सकते हैं कि तकरीबन 8% जो कोरोना है ये पुलिस डिपार्टमेंट दे विच है लुधियाने। रीज़न क्योंकि इंटरैक्शन पुलिस का ज़्यादा है। पुलिस इन्फोर्समेंट ली जाती है, चौक्स से खड़े होकर गड्डियां की चैकिंग करती है, रोकती है। इस करके आपां नूं सारिआं नूं सावधान रहना चाहिए है। अवनीश त्रिपाठी इन्होंने क्या है कि सम पुलिसमैन आर नॉट वेयरिंग मास्क। देखो ये पुलिसमैन भी सोसाइटी का पार्ट है। जे वो भी बिना मास्क के सानू मिलते हैं, असीं उन्हां दा भी चलान करते हैं। काफ़ी बारी उन्हां दा चलान किया है। उन्होंने असीं मोटिवेट भी करते हैं, उन्होंने बार बार ट्रेनिंग भी दिंदे हैं। तो जे कोई पुलिस का मुलाजिम बिना मास्क के कोई जे ड्यूटी करूगा, असीं उन्हां दे खिलाफ भी एक्शन लवांगे, उन्होंने समझाते भी हैं। क्योंकि ये कोरोना कोई ये नहीं देखता कि ये पुलिस का मुलाजिम है या ये डॉक्टर है या ये कोई इंजीनियर है, वो तो सारिਆਂ ਨੂੰ इंपैक्ट करता है। संदीप मग्गू इन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हाउ लेबर मूव टू फैक्ट्री और होम। देखो ये जो सैटरडे संडे वाला ये शायद पूछ रहे हैं, सैटरडे संडे जी तुहाडी फैक्ट्री चल रही है उहदे लई मूवमेंट तो कोई वैसे भी सैटरडे एंड संडे मूवमेंट्स से रोक नहीं है। दुकाना जी नॉन इसेंशियल दुकाना है, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो बंद है। लोगों को एडवाइज है कि वो अपने घर के अंदर रहन, लेकिन जो उन्होंने अपनी फैक्ट्री ऑफिस या कोई इसेंशियल आइटम्स खरीदन लई जाना होवे वो जा सकते हैं। कनव चावला इन्होंने पूछा है कि प्लीज़ अपडेट ऑन वैडिंग एंड फैमिली फंक्शन। ये मैं तुहानूं दस ही चुकिया हाँ कि वैडिंग जोड़े मैरिज के 30 बंदे अलाउड हैं। तो बाकी जिन्हें भी सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल किसी भी तरीके का जो इकट्ठ है, उस इकट्ठ के विच केवल 5 बंदे ही हो सकते हैं। 144 धारा लगी हुई है। 5 बंदियों तो जो वध आप इकट्ठे होंगे हैं तो वो जो है वो कोरोना की गाइडलाइनस की वायलेशन है। असीं उन्हां दे खिलाफ FIR भी दर्ज करते हैं। उन्हां दा पासपोर्ट भी कैंसिल होंदा है, उन्हां दा असला लाइसेंस जिहड़ा आम लाइसेंस है वो भी कैंसिल होंदा है। उन्हां बंदियां नूं फिर जे बाहर जाण दे चाहवान होण उन्हां नूं PCC पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। उन्हां दी लाइफ गधी गेट च पै जांदी है। मतलब उन्हां दा मुश्किल हो जाता काम। एंड मैं समझ सकदा कि अवॉइडेबल चीज़ है। आपां इकट्ठा हो आपां रश करना ही क्यों किसी चीज़ का। जे तां तुसीं कोई करोड़ 2 करोड़ की लॉटरी निकली है, फिर तो तुसीं खुशी मनाओ जी कि जी मेरी लॉटरी निकली है। जस्ट वैसे ही तुसीं केवल अपने कोई बर्थडे मनाने लिए कोई इकट्ठा हो रहा है कोई उस तरीके का, इसनूं आपां थोड़े दिन अवॉइड कर लीए। 2 महीने की गल है। रजत सिंह इन्होंने क्या है कि आई गॉट माई कोविड टेस्ट ऑन 11/8 बट रिपोर्ट इज स्टिल पेंडिंग, व्हाट शुड वी डू। देखो ये जी रिपोर्ट है कोविड टेस्ट की, ये विदिन 24 आवर्स आ जानी चाहिए है। वध तो वध कई बार कोई टैक्नीकल कोई सैटरडे संडे आ गया तो 48 घंटे लग जाते हैं। तो जिथे तुसी मैनू नहीं पता कितने तुसी कराया है, लेकिन साडी फेसबुक पे तुसी देखोगे एक हैल्पलाइन नंबर्स दिते हुए हैं DC ऑफिस के, तुसी उन्हां नूं कॉन्टैक्ट कर लो, तुहानूं दस देणगे कि तुहाडी रिपोर्ट आ गई होनी है। कई बार हुंदा है कि जो रिपोर्ट आती है वो तुहानूं एक SMS जाता है, वो SMS दे विच ना खराबी आ गई होवे, तुहानूं इह ना लग रहा होवे। अदरवाइज रिपोर्ट मैं 100% श्योर हाँ कि यह विदिन 48 आवर्स आ जाती है। नवनीत सूरी इन्होंने क्या है कि देयर इज स्टिल फियर इन पब्लिक दैट कि जे वो हॉस्पिटल गई पब्लिक तो वो वापस नहीं आएगी। देखो इस तरीके का तो कुछ डर नहीं है। ये पब्लिक नूं इस तरीके का डरन की लोड़ नहीं कि जे कोरोना हो गया तो जे हॉस्पिटल चले गए तो वापस नहीं आएंगे। मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि 90% 80% तो होम आइसोलेशन की पॉलिसी है कि जिहड़े बंदे नूं कोई सिम्पटम्स नहीं है वो अपने घरां दे अंदर ही रहणगे। जिहड़े हॉस्पिटल इस करके रखा जाता है कि जे बंदे नूं ऑक्सीजन की लोड़ है। हुण जिद्दां मैं पहला भी कहा सीगा कि सपोज आपां गड्डी 'च जा रहे हैं, टायर दे विच हवा घट गई तो कि आपां जे गड्डी चलावांगे टायर खराब हो जाऊगा। जे आपां माड़ी जी हवा किसी पेट्रोल पंप पर जाके हवा पवा ली, वो गड्डी बिल्कुल नवी बन गई दोबारा। इसी तरीके नाल जे आपां नूं कोई कोरोना डॉक्टर ने देखना है कि बई जे आपां नूं कोई ऑक्सीजन की लोड़ है, उन्हें 2-3 दिन 4 दिन हॉस्पिटल रखना है। ऑक्सीजन की लोड़ है, आपां नूं ऑक्सीजन दे देनी है, 2-3 दिन दे विच अपनी बॉडी ने रिकवर कर जाना है, उन्होंने होम आइसोलेट कर देना है। तो जे आपां उस चीज़ नूं लापरवाही करांगे, वो बॉडी लोड लेगी, बॉडी थकूगी एंड डबल काम करना पेगा बॉडी के ऑर्गनस नूं, वो फिर ज़्यादा लूप बन जाता है। इस करके आपां डॉक्टर्स के हिसाब नाल चलना है। एंड
मैं जिद्दां अपने 260 पुलिस मुलाजिम सीगे जिहड़े हुण तक कोरोना जिन्हां नूं होया 100 अपने बिल्कुल ठीक होके वापस आ गए, 160 हले पॉजिटिव है। इन्हां दा भी एक सर्किल हुंदा है कि जदों कोई कोरोना हो जाए तो वह 14-15 दिन लगी जाते हैं, वो उन्हां दे विच है, किसी नूं 10 दिन हो गए, किसी नूं 8 दिन होए, वो लगभग सारे रूटीन दे विच आए जा रहे हैं। लेकिन जिहड़ा बंदा प्रिकॉशनस नहीं लवेगा वो फिर ट्रैप हो जाता है, इस करके प्रिकॉशनस लेनी जरूरी है। मुकुल ऑल इन्हां ने पूछा हैगा इन लुधियाना वी आर एट ए स्टेज कि केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं डे बाई डे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ लॉकडाउन करना चाहिए। देखो मुकुल जी, वो लॉकडाउन तो मैं तुहानूं पहले ही दस चुकिया कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इहदा जो है वो प्रिकॉशन ही है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रिकॉशनस लैनियां पैणगियां। लॉकडाउन तो यह है कि जे सपोज सारे ही बंदे अनपढ़ अपने बन जान कि ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ नहीं कोई गल, फिर हुंदा है कि लॉकडाउन करना है। गौरव भाटिया इन्होंने पूछा है कि इफ़ एनी परसन अलोन सिट ऑन हिज शॉप, यानी कि जे बंदा कोई अकेला अपनी दुकान पर बैठा है या अकेला गड्डी दे विच जा रहा है कि उन्होंने मास्क लगाना जरूरी है। तुसी आप ही दसो कि नुकसान की है जे मास्क लगा भी लवांगे। मैं भी तो ऑफिस अद्धे टाइम तो मैं अकेला ही बैठा हुन्ना, फिर क्योंकि हुंदा की है सपोज कोई बंदा मिल के गया ऑफिस दे विच, उहदी हवा थोड़ी बहुत देर तक रहिंदी है, तो जे आप मास्क बाद दे विच उतार भी लिया हो सकता है कि इन्फेक्शन कर देवे। तो आप मास्क कोई इस तरीके का हुआ तो है नहीं कि जी आप जी कि जे मास्क लगा लिया तो जी कोई दम घुट गया, कोई अस्थमा हो गया, कोई इस तरीके का। हुण तो सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी आदत हुण तक तो पै जानी चाहिए है, इस करके इस तरीके के क्वेश्चन तो तुहाडे दिमाग 'च नहीं आना चाहिए। तुसीं तो ये कहो कि जी मास्क आप घर के अंदर भी लगा के रखना, हालांकि घर के अंदर तो चलो अपनी तुहाडी अपनी फैमिली के नाल ही हुंदा है, तो बाहर जदों भी निकलो हमेशा मास्क लगा के रखो। अशनूर सिंह कोचर इन्होंने क्या हैगा कि मैं सिविल हॉस्पिटल गया सी एंड उत्थे पार्किंग वाला बंदा पार्किंग जोड़े स्लिप्स दे रहा सी, उन्हें मास्क नहीं पाया हुआ सी। देखो ये तो बड़ी सीरीयस गल है, जो सिविल हॉस्पिटल दे बंदे कोई इस तरीके का पार्किंग तो बिना मास्क दे हैं तो असीं उन्होंने गाइड करांगे। भुपिंदर पाल इन्होंने लिखा हैगा कि कुछ बंदे सड़कों ते गुटखा खा के थूक दे, उन्होंने उपर लगाम लगाई जाए। बिल्कुल तुहाडा असीं ये तो बैन है वैसे भी गुटखा किसी पब्लिक प्लेस से कोई तंबाकू वगैरह खाना, इसमें असीं चैक कर लवांगे। रविंदर विज इन्होंने काफ़ी सारे सजेशंस दिते हैं, अच्छे सजेशन है रविंदर जी तुहाडे, असीं इन्हां नूं देखांगे कि किस किस सजेशन नूं असीं फॉलो कर सकते हैं। मैडम ढिल्लों इन्होंने लिखा हैगा कि हाउ लॉन्ग कोरोना वायरस विल रिमेन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एल्डर्स टू रिमेन विदाउट मेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। इन्होंने क्या है कि यानी कि एल्डर्स नूं बिना मेड्स की प्रॉब्लम हो रही है, कदों तक ये कोरोना रहूगा। देखो ये तो किसी को नहीं पता कदों तक रहेगा, लेकिन तुसी मेड्स नूं प्रिकॉशनस दे लैके बुला सकते हो, उन्होंने भी रोजी रोटी है, तुहाडी भी प्रॉब्लम आ रही है, तुसी मेड्स नूं देख लो, उन्होंने गाइड कर दो कि जे टैंपरेचर है तो फिर नहीं आना, क्योंकि ये तो हुण कोरोना के नाल रहन की आपां नूं आदत पानी पेगी। एंड उन्होंने प्रिकॉशनस रखने की कहो, जदों भी वो आते हैं हैंड वगैरह वॉश करके रखन, अपना घर दे विच भी जदों वापस जाते हैं तो किसी आलतू फालतू के बंदियां नाल मेल मिलाप ना रखन। पवन कुमार इन्होंने क्या है कि प्लीज़ इंक्रीज डोर टू डोर टेस्टिंग। देखो पवन जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पहला कैपेसिटी पहला तो आज महीने पहले तो 1200 टेस्ट डेली के होंगे सी, आज के दिन तकरीबन 2500 टेस्ट कोरोना का डेली का हो रहा है। एंड इसनूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी छेती ही, मेरी आज ही DC साहब और सिविल सर्जन साहब नाल गल हो रही सी, 5500 तक वो इस हफ्ते दे विच ही लैके चले जावांगे, तो काफ़ी कैपेसिटी इंक्रीज़ की जा रही है। पुखराज सिंह बक्कड़ इन्होंने क्या है कि सर लुधियाना सिटी हैज़ मोर ट्रैफिक दैन एवर विद ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, मैनी ए टाइम ट्रैफिक इज़ डाइवर्टेड टू सिंगल लेन, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है। पुखराज जी असीं तुहाडी गल नोट कर ली। वरुण थापर इन्होंने क्या है कि फूड डिलीवरी वाले कुछ बंदे हैं जो कि लेट रात तक कर्फ्यू तो बाद भी डिलीवरी करते हैं, असीं इन्हों चैक कर लवांगे, लोड़ पई तो असीं वी विल इशू चलान्स टू दैम। अंकुर गुप्ता इन्होंने क्या है कि ऑन वीकेंड एवरीथिंग शुड रिमेन शट,
देखो एसेंशियल गुड्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਖੋਲਣ ਲਈ। बाकी जे कोई एसेंशियल वाला भी बंदा वॉलंटरीली शट करना चाहता है तो वो अपना कर सकते हैं। मोहित आहूजा इन्होंने क्या है इंक्रीज टेस्टिंग इन द सिटी, मैं तुहानू दस ही चुकिया हाँ। भावल ढींगरा इन्होंने क्या है कि लोकल थीव्स आर वेरी एक्टिव इन सिविल लाइन एरिया, प्लीज़ प्रोवाइड PCR सब मोटरसाइकिल्स ਨੀਅਰ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਵਲ ਜੀ, तो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। PCR ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗਸ਼ਤ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ। ਮੱਕਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਓਪਨਿੰਗ ਨਿਊ ਬੈਡ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫॉर कोविड पेशेंट्स बट वाई डोंट यू अपग्रेड योर सिविल हॉस्पिटल विद वेंटिलेटर बैड्स और ऑक्सीजन बैड्स। देखो तेजिंदर सिंह जी, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ भी ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, भावें वो गौरमेंट सैक्टर्स की होवे प्राइवेट की होवे। प्राइवेट हॉस्पिटल मैं तुहानू पहला दस्सिया सी 1 महीने पहला तकरीबन 100 के करीब बैड्स कोरोना लई लुधियाने दे विच सीगे। अज की डेट च 1000 के करीब बैड प्राइवेट सैक्टर के अवेलेबल हैं। असी 1000 नू भी कोशिश कर करके इसनू 2000 तक लैके जाना है। गौरमेंट के बैड्स तकरीबन टोटल 2000 बैड्स कोरोना लई हैं। उन्हां दे विच जिहड़े ऑक्सीजन वाले बैड्स हैं वो भी काफ़ी सारे सीगे, 750 के करीब ऑक्सीजन वाले बैड्स हैं एंड वेंटिलेटर वाले 15 हैं। असी पूरी साडी कोशिश है कि सारे रल मिल के इन्हां बैड्स नू इंक्रीज़ किया जाए एंड जिन्ना कि भी मैक्सीमम पॉसीबल हो सकता है असी बिल्कुल लैके जावांगे। मिंकू कंडा इन्हां ने लिखा है कि आई एम 37 ईयर ओल्ड, आई सफर फ्रॉम अस्थमा प्रॉब्लम from my child age, what can I do for COVID-19 precaution, please tell me medicine। देखो मिंकू कंडा जी, ये कोई मेडिसिन तो है नहीं, मेडिसिन तो यही है कि तुसी अपने घर एंड तुहानू क्योंकि अस्थमा है। देखो एक चीज़ और मैं दसना चाहांगा कि जिहड़े बंदियां नू कोई पुरानी बीमारी है जिसनू कि आपां कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, कोमॉर्बिडिटी कंडीशन होंदी है कि जिन्हां नू कोई पुरानी बीमारी है, खासकर ये अस्थमा कोरोना लई जिहड़ी बीमारियां डेंजरस हैं। एक तो अस्थमा हो गई जिहदे करके साडे भी अपने ACP साहब अनिल कोहली जी उन्होंने लाइट जा इस तरीके का अस्थमा सी, उन्होंने हालांकि आप तो नहीं पता लग्या, हुण बाद च सानूं लगदा। अस्थमा, TB, अस्थमा का ही रूप है TB, बड़ा रूप है TB। शुगर का भी बंदे नूं पता नहीं चलता आप, अस्थमा, TB, शुगर, किडनी, लिवर, कार्डियक, ये 5-6 मोटी मोटी बीमारियां जिहड़े बंदे नूं होवे वो तो बिल्कुल 2 महीने लिए अपने कमरे नूं ताला बाहरों लगवा दे कि मैं ना किसी नूं मिलना है ना ही किसी नूं मिलन देना है। क्योंकि ये जिहड़ी कोमॉर्बिड बीमारियां वाले बंदे हुंदे हैं, इन्हां नूं ये बीमारी जे हो जाती है, इन्हां नूं खतरा नॉर्मल बंदे नालों 10 गुना आप कह सकते हैं ज़्यादा होता है। नॉर्मल बंदा जल्दी रिकवर कर लेंदा है, कोमॉर्बिडिटी करके उन्होंने भी एग्रीवेट कर देंदी हैं। कोरोना नाल डैथ नहीं होगी, लेकिन कोरोना हो गया तो लिवर जो किसी बंदे का खराब है उसका क्रिएटिन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। कुलदीप आहूजा इन्होंने लिखा है कि सर एक्शन इज़ नीडेड नॉट अपील। देखो एक्शन और अपील दोनों का ही अपना अपना काम है। एक्शन की जे आप गल करिए 56,000 चलान विदाउट मास्क के असी हुण तक लुधियाने दे विच कर चुके हैं। 2.5 करोड़ तो वध 2.5 करोड़ तो वध दा असी फाइन लैके हैल्थ डिपार्टमेंट के अकाउंट दे विच जमा करा चुके हैं। हज़ार तो वध असी FIR वायलेशनस दियां दर्ज कर चुके हैं तो साडी एक्शन भी चल रहा है एंड अपील का अपना है। क्योंकि कई बंदे होंदे हैं जिन्होंने केवल एक जस्ट होंदा है, वो 10 जे उन्होंने आप थोड़ा टोक दईए वो समझ जाते हैं। गुरप्रीत सिंह भंबर इन्होंने क्या है कि इस देयर लॉकडाउन ऑन सैटरडे एंड संडे। बिल्कुल लॉकडाउन है, सैटरडे संडे मैं दस ही चुकिया, किहड़ी चीज़ां खुलियां रहणगियां वो भी मैं दस चुकिया। गुरप्रीत सिंह खालसा, हरप्रीत सिंह खालसा इन्होंने लिखा है इज ऑफिसेज और बैंक्स ओपन ऑन सैटरडे। ऑफिसेज एंड बैंक्स ओपन हो सकते हैं सैटरडे संडे, ओपन करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी विलिंगनेस है। हरसिमरन सिंह रिखी
इन्होंने कहा है कि सर स्कूल कॉलेजेस कदों तक खुलणगे, थोड़ा जिहा हले वेट करो। देखो ये महामारी अपने पीक ते चल रही है, काफ़ी सारे क्योंकि असी कोई भी नहीं चाहता कि बच्चे इस बीमारी नाल किसी भी तरीके का उन्होंने फर्क पवे, इस करके थोड़ा जिहा सानू थोड़ा जिहा कोई एक्शन रहना चाहिए। गोल्डी भगत इन्होंने क्या हैगा कि व्हाट इफ आई एम कमिंग फ्रॉम अनदर डिस्ट्रिक्ट टू लुधियाना एंड गॉट लेट आफ्टर 9 PM, कैन आई कम और वुड आई बी चलान। देखो अपने टाइम सिर जो गवर्नमेंट ने बनाया है उस हिसाब नाल तुसी आने की कोशिश करा करो, लेकिन फिर भी जे तुहाडी कोई मजबूरी है असीं उसनूं ध्यान रखांगे। गौरव गुप्ता, स्टॉप ऑल पॉलिटिकल गैदरिंग एट लीस्ट। देखो ये तो असी इस लेवल ते भी गाइडलाइंस जारी कीतियां हैं एंड रिक्वेस्ट भी की गई है कि सारे नूं कि आपां नूं महीने 2 महीने लिए अपनी जिस तरीके की भी कोई एजिटेशन है उन्होंने पोस्टपोन कर देना चाहिए है। एंड मेरी दोबारा भी यही अपील है सारिਆਂ ਨੂੰ कि जे कोई DC ऑफिस या किसी ਨੂੰ मैमोरेंडम देना हो ईमेल के राही आप दे सकते हैं, शिकायती बॉक्से बनाए हुए हैं उन्होंने राही दे सकते हैं, या 2 बंदे आके कोई मैमोरेंडम दे सकते हैं। किसी भी तरीके का इकट्ठ करके पब्लिक की जो हैल्थ है उसनू खतरे दे विच ना पाया जाए। गौरव कुमार इन्होंने लिखा है कि सैटरडे संडे असी एक सिटी तो दूजे सिटी जा सकते हैं। देखो टैक्नीकली तुसी जा सकते हो, लेकिन जो अपील है स्टे एट होम वो तुसी जरूर ध्यान रखो, क्योंकि ये जे आप हर एक बंदा सोचेगा कि मेरी तो इसेंशियल मेरी तो ट्रैवल बड़ी इसेंशियल है, फिर कोई अपन सख्त एक्शन लेना पएगा। इस करके वॉलंटरी जो काम हो जाए अपनी इच्छा के हिसाब नाल हो जाए वो सब तो वधिया हुंदा है। विपिन विनायक इन्होंने लिखा है कि सर देयर इज ए ह्यूज रश क्रिएटेड बाई रेडी फड़ी सब्जी वालाज ऑन मेन नूर वाला रोड, इसनों असी चैक कर लवांगे। हनी जुनेजा इन्होंने लिखा है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड बी ओपन so that we young unemployed section we can get a permanent job. Weddings can happen, religious places can open, flights can go, why no coaching center? देखो कोचिंग्स दा ऑप्शन है, कोचिंग्स दे तुसी ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हो एंड ਜਿਹੜੇ कोचिंग सेंटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। स्कूल कॉलेजेस तो सारे बंद हैं, कोई एग्जाम्स वगैरह भी प्रॉपरली हले कोई नहीं हो रहे, लेकिन ये चीज़ अंडर कंसीडरेशन है एंड तुसी अपना दिल ना छड्डो। ये लड़ाई आप सारिਆਂ ने मिल के जितनी है, कोई एक किसी दी कोई सरकार दी या किसी दी ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सैक्शन को इकोनॉमिकली डाउन किया जाए। ये तो जस्ट ये अपने सारिਆਂ दी सहयोग के हिसाब नाल ही आप लड़ाई नूं जित पावांगे। वरुण गुप्ता इन्होंने पूछा है कि बेकरी शॉप्स सैटरडे को खुल सकती हैं। देखो बेकरी वगैरह शॉप्स तो बिना तो अपना काम चल सकता है, बेकरी वगैरह इसेंशियल्स दे विच असी नहीं पाइया हुई हैं। ये काफ़ी सारे ने लिखा हुआ, कुलदीप सिंह कनूर, मनदीप सिंह धालीवाल, इन्होंने भी कुलदीप सिंह कनूर इन्होंने भी कोचिंग का ही किया हुआ है एंड मनदीप सिंह धालीवाल इन्होंने क्या होया कि कंप्लीट लॉकडाउन फॉर 21 डेज। देखो मनदीप जी हले उस चीज़ से अपन नहीं जा रहे। कोचिंग सेंटर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस तुसी सारे ने इकट्ठे लिख के भेजे हैं। संजीव सिंगला इन्होंने सारे ने कोचिंग सेंटर्स का लिखा है, संजीव सिंगला पूरा पेज कोचिंग सेंटर्स का है। विजय टक्कर इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ अलाउ टू डू स्मॉल डिवोशनल फंक्शन, यानी कि धार्मिक समागम करने की इजाजत। देखो विजय जी हले आप रुक जाइए, धार्मिक तुसी अकेले पूरे दिन तुसी मैडिटेशन करो एंड मैडिटेशन का फायदा होंदा है, लेकिन ग्रुप दे विच हले आपां नूं थोड़ा जा वेट करना चाहिए, क्योंकि जदों आपां ग्रुप दे विच किते भी इकट्ठे होकर ज़्यादा देर लिए बैठते हैं एंड उहदा फिर यह नुकसान हो सकता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चनस आपां नूं आ रहे हैं, असी उन्हों का बाद दे विच तुहाडे जवाब दे देवांगे। दीपक कौशिक इन्होंने लिखा है कि प्रोसीजर टू गो आउट ऑफ स्टेट। देखो दीपक जी आउट ऑफ स्टेट जाने लई कोई मनाही नहीं है, कोई परमिशन नहीं चाहिए होंगी। तुसी बाहर जाना है, किसी भी स्टेट जाना है तुसी जा सकते हो, बसां चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, तुसी अपनी गड्डी लैके जा सकते हो। जे तुसी बाहरों आ रहा होवे पंजाब दे विच, उहदे लई कोवा ऐप है,
ਉਹ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 72 ਆਵਰਸ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 9115601159। ਇਹ 9115601159 ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਘूम ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਅਲਾउड नहीं है कोई एक्टिविटी, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਕਿੱਟ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਕਿੱਟ ਅਸੀਂ DMC ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੀਮਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੀਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਕੁਛ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕੁਛ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਕ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਿਲੋਏ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੌਪਸਿਡ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੌਪਸਿਡ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਲਸ ਕਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਲੋ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੋਲੋ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਸੁਪਰਾਡਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਫ ਸੀਰਪ LX ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਟਾਡਾਈਨ ਦੇ ਗਾਰਗਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੈਟਰੀਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਖੰਘ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੈਟਰੀਜਨ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਐਂਡ ਬੈਲੂਨ ਤੁਲਸੀ ਲੀਵਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਰੇਟਸ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਟਸ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੈਂਟੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਟਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ 7837018500 7837018500 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਟਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ 1700 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਘੰਟੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ 7000 ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, 7000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਚਲੋ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ 2000 ਐਕਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਲੋ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿਤੇ ਗੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਉਲਝਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 52 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5000 ਮਾਸਕ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਗਰੀਬ ਪਾਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕਦੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਰੂਲਸ ਦੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਇਕਨੋਮੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਨਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਔਰ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ।